Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Dr. Muhammad Zaman Ashraf. I welcome you all in basic organic chemistry. So organic chemistry, it's actually the chemistry of organic compounds. Organic compounds, they are compounds of carbon and their derivatives. So functional groups in organic chemistry, it's very important to understand the organic chemistry if we know the properties of functional groups. What are functional groups? Functional groups in organic chemistry, they are atom or group of atoms which give characteristic properties to organic compounds. So it means वो characteristic properties, these are actually chemical properties or chemical reactivity of organic compounds. So it's very important to understand the nature of functional group if we want to know the chemical reactivity of organic compounds. So organic reactions, we know that organic compounds, they are made up of covalent bonds, and they may be polar covalent bond or they may be non-polar covalent bond. Based upon the presence of these functional group, वो जो कार्बन है, that carbon may be electron rich or electron deficient. अगर वो इलेक्ट्रॉन रिच होगी then it can act as a nucleophile, और अगर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी then it is an electrophile. अगर वो इलेक्ट्रोफिलिक है तो फिर उस पर जो है वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और अगर वो न्यूक्लियोफिलिक है तो वो किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक कर सकती है. सो इट मीन्स if we know the nature of functional group, then we can describe the chemical properties of organic compounds. So functional group, the first definition of functional group, these are atoms or group of atoms which give characteristic properties to organic compounds. आज के इस लेक्चर में हम फंक्शनल ग्रुप्स के स्ट्रक्चर्स, उनके नेम्स और फिर क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, अगर ये फंक्शनल ग्रुप होगा तो ये कौन सी क्लास है, इस पे जो हम जो है वो बात करेंगे. एंड आल्सो ब्रीफली वी विल डिस्कस the reactivity of different functional group. Why some of the functional group they give electrophilic substitution reaction or free radical substitution reaction or nucleophilic substitution reaction. So it means why different organic compounds undergo different types of chemical reaction. हम इस पे भी जो है वो briefly जो है वो discuss करेंगे. And this is due to the presence of different types of functional groups. So let's start with the organic compounds. अगर आप जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें, फर्स्ट वन अल्केन्स की अगर आप बात करते हैं, देन वी हैव दीज आर सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ओनली सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट. आप इनको जो है वो हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं, विच कंटेन ओनली सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, अल्केन्स. जब आप फंक्शनल ग्रुप्स की बात करते हैं, वी नॉर्मली नॉट क्लासीफाई अल्केन्स टू एनी फंक्शनल ग्रुप. हम इसको जो है वो किसी फंक्शनल ग्रुप में जो है वो डिस्कस नहीं करते. दो आपके पास जो अल्केन्स हैं, इसकी हाइड्रोजन को आप रिमूव कर सकते हैं बाय सम हैलोजन, जैसे आप जो है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करते हैं. बट स्टिल बिकॉज दीज अल्केन्स दे आर नोन एज पैराफिन्स, तो इसलिए आप इनको जो है वो किसी फंक्शनल ग्रुप्स में जो है वो क्लासीफाई नहीं कर रहे होते. हाँ, अलबत्ता अगर आप इस हाइड्रोजन को रिमूव करके यहाँ कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच करते हैं, हाइड्रोक्सिल अटैच करते हैं या आप क्लोरो अटैच करते हैं या ब्रोमो अटैच करते हैं, तो उस बेस पे फिर आप इसको जो है वो डिफाइन कर रहे होते हैं कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है. तो इन शॉर्ट, these alkanes, they are saturated organic compounds. They contain only single covalent bond and valency of this carbon is fully satisfied by single covalent bonds. अगर इसकी valency जो है वो fully satisfied है by single covalent bonds, it means आप यहाँ addition reactions नहीं कर सकते. ये बात आप याद रखिएगा. All those organic compounds which are saturated, they never undergoes addition reaction.
मोस्टली दे अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किस तरह की सब्स्टिट्यूशन होती है? इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ दैट कार्बन। अगर कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक होगी तो फिर जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, अगर वो कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच होगी तो फिर जो है वो आप कह सकते हैं कि वो किसी इलेक्ट्रोफाइल पे जो है वो अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। सो अल्केन्स दीज आर सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाँ, जब आप अल्कीन्स की बात करते हैं तो फिर हम ये कहते हैं अल्कीन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन double bond as a functional group. So it means we have carbon, double bond carbon. So this double bond ये जो आपके पास है, it contains one sigma bond and one pi bond. This is a functional group of this class of organic compound, and they are known as unsaturated organic compound. So here we have 3 bonds. आपके पास जो है वो सिग्मा बॉन्ड 3 है और एक जो है वो आपके पास पाई बॉन्ड है. So because they are unsaturated hydrocarbons, alkenes, they can give addition reaction. What type of addition? It depends upon the nature of this structure. अगर आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं then electrophilic addition, and if you generate free radicals then alkenes they also undergoes free radical addition. So alkenes, unsaturated organic compounds, give addition reaction, electrophilic addition reaction because of the presence of pi electrons. ये जो है वो आपके पास pi bond, these are actually pi electrons, and because of these pi electrons electrophile यहाँ जो है वो easily add up हो सकता है. And alkynes, it contains a functional group which is triple bond carbon, like that. So here we have 2 pi bonds. So both these compounds आपके पास alkenes and alkynes, they are known as unsaturated hydrocarbons, unsaturated organic compounds because they contain double bonds. आप इनमें जो है वो कुछ और स्पीशीज़ की एडिशन कर सकते हैं, जैसा कि अगर अल्कीन है तो उसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो अल्केन बनेगा. अगर आपके पास जो है वो अल्काइन है उसमें 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो पहले वो अल्कीन में और फिर अल्केन में जो है वो कन्वर्ट होगा. सो अल्कीन्स एंड अल्काइंस बिकॉज दे आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दे अंडरगोज एडिशन रिएक्शन. सो इनकी जो एग्जांपल्स हैं या nomenclature of all these compounds, I have discussed the nomenclature of all these compounds in my previous videos. So it means this carbon-carbon triple bond, it is a functional group in this compound. अगर आप जो है वो एसिटाइलिन की एग्जांपल लें, because you change the functionality in these 3 structures, यहाँ आपके पास जो हाइब्रिडाइजेशन है it is sp3, यहाँ आपके पास sp2 और यहाँ आपके पास sp. सो इट मीन्स आप जब अल्केन से अल्काइन की तरफ मूव कर रहे हैं, यू चेंज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस कार्बन एटम. जब आप किसी कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट चेंज करते हैं, उसकी जो एबिलिटी है टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, वो चेंज होगी. सो दिस कार्बन एंड दिस कार्बन बोथ दे हैव डिफरेंट एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इस कार्बन में सबसे ज्यादा एबिलिटी है टू अट्रैक्ट दिस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. दैट्स व्हाई आर दोज कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. और अगर उस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन अटैच होगा तो हम उस हाइड्रोजन को कहते हैं दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन. सो एसिडिक हाइड्रोजन विच कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग बेस. अगर आप इसका रिएक्शन जो है वो सोडामाइड के साथ करते हैं तो आप ये हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हैं. अगर आप एसिडिटी कंपेयर करें इस हाइड्रोजन की और इस हाइड्रोजन की, दिस इज मोस्ट एसिडिक, दिस इज लेस एसिडिक. ठीक है. सो दिस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, या यहाँ जो है वो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स की वजह से आप इसे कह सकते हैं. एंड नेक्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड्स. आर एरीन्स, बेंजीन. Benzene itself, a functionality in this molecule. So we have this
दिस कंपाउंड इज अनसैचुरेटेड। अगर आप देखें, हियर वी हैव 3 डबल बॉन्ड्स, बट when we discuss the reactivity of this class of compound or this functionality, तो हम expect करते हैं this compound it undergoes addition reaction, but it preferably give substitution reaction. So what type of substitution? Because pi electrons are present in benzene ring, so that's why preferably it undergoes electrophilic substitution reaction. Why benzene it undergoes substitution reaction and alkene or alkyne they undergo addition reaction? This is because of the difference in functionality. It is aromatic in nature. So to retain the aromatic character, अगर आप इसमें addition कर दें किसी species की, suppose आप hydrogen add कर दें, तो अगर 1 mole आप add करते हैं, then it is converted into this diene. So it means aromatic character of this benzene is destroyed. If we substitute any electrophile, आप एक हाइड्रोजन को रिमूव करके इलेक्ट्रोफाइल उसकी जगह लगा देते हैं, हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, इलेक्ट्रोफाइल इज सब्स्टिट्यूटेड, और ये आपके पास जो स्ट्रक्चर है दिस रिटेन इट्स एरोमेटिक character. So aromatic compounds, to retain their aromatic character, they preferably undergo substitution reaction instead of addition reaction. So this is all about the functionalities or structures or chemical reactions of hydrocarbons, जिसमें आपने alkanes, alkenes, alkynes और aromatic compounds को जो है वो देखा. So alkanes, they are saturated hydrocarbons, substitution reaction, free radical substitution. Alkene and alkyne, unsaturated hydrocarbons, addition reaction. Aromatic compounds, though they are unsaturated hydrocarbons, but they are different as compared to alkenes and alkynes. That's why they undergo substitution reaction, electrophilic substitution. So let's move to some other compounds. Hydroxyl. Hydroxyl functional group, OH. It is polar in nature because oxygen hydrogen bond is polar covalent bond. अगर आप इसे जो है वो हाइड्रोक्सिल को कंपेयर करें किसी कंपाउंड के साथ, तो आप कह सकते हैं वाटर. So when here in place of hydrogen, if we have alkyl group, then this is class of compound and they are known as alcohols. So whenever methyl or any alkyl group is attached with this hydroxyl group, then it is known as alcohol. ये जो class of compound होगी वो alcohol है. And because of the presence of this hydroxyl functional group, they are polar. Polar in nature. तो it means कि अगर ये polar है, मिसाल के तौर पे आप यहाँ लेते हैं CH3OH or you have C2H5OH, methanol and ethanol. So methanol and ethanol, they are known as polar organic compounds and they are soluble or miscible with water because of the presence of hydrogen bonding between hydroxyl of this alcohol and with water hydroxyl functional group. If this hydroxyl group is attached at benzene ring, any aromatic system, then class of compound is known as phenols. Okay, so alcohols and phenols, both these organic compounds, they possess same functionality, hydroxyl functional group, but both hydroxyl are different because this is alkyl group, it is electron donating. Here we have benzene ring and hydroxyl. So this hydroxyl, it is more acidic than alcohols. It means कि ये हाइड्रोजन आप आसानी से रिमूव कर सकते हैं एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्कोहल्स. केमिकल रिएक्टिविटी की अगर आप बात करेंगे, देन सपोज अगर आपके पास एथेनॉल है CH3CH2OH,
तो हम जो है वो डिफरेंट टाइप्स के जो है वो रिएक्शन पढ़ते हैं। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें आप इस हाइड्रोक्सल को रिमूव कर दें, तो हाइड्रोक्सल ग्रुप जब कभी भी आप अल्कोहल से रिमूव करेंगे वो एज अ न्यूक्लियोफाइल आप उसको जो है रिमूव कर रहे होंगे। सो इट मीन दीज अल्कोहल्स दे अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे अगर आप अल्कोहल का रिएक्शन जो है वो SOCl2 के साथ करें, देन यू कैन सिंथेसाइज अल्काइल हैलाइड। जस्ट वन एग्जांपल। Also these alcohols they undergoes another type of reaction which is called beta elimination, क्योंकि आपके पास हाइड्रोक्सल और बीटा हाइड्रोजन आप इनको जो है रिमूव कर सकते हैं और इससे आप अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सिंथेसाइज कर सकते हैं अगर आप इससे वाटर रिमूव कर लें। सो दिस इज फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन। सो इट मीन्स के अगर आप जो है वो फंक्शनल ग्रुप्स का आपको पता हो एंड यू नो what kind of chemical reactions they are possible in this functional group, then you can easily convert one functional group into an other one. So it means it also undergoes this elimination reaction। और समटाइम अगर आप जो है वो मेटल के साथ रिएक्शन करें, जैसे सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करें, तो आप इस हाइड्रोजन को भी यहाँ से रिमूव करके अल्कोक्साइड जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ this phenol, phenols we know that they are more acidic as compared to alcohols, तो आप हाइड्रोजन रिमूव करके यहाँ कोई और ग्रुप अटैच कर सकते हैं। आप इस पे जो है वो स्टेरिफिकेशन रिएक्शन कर सकते हैं अल्कोहल पे या फिनोल पे या एरोमेटिक कंपाउंड्स पे जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। सो हाइड्रोक्सल फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। नेक्स्ट वी हैव हेलो ग्रुप, हेलाइड्स। X may be fluorine or chlorine or bromine or iodine. So when these groups may be, X may be any halogen attached with this alkyl group, then class of compound is known as alkyl halides or halogeno alkanes. For example, if you have CH3Cl, so carbon and Cl bond is present in this class of compound. अगर आप इस कार्बन का जो है वो स्ट्रक्चर देखें, then this carbon is sp3 hybridized. So it means alkyl halides they are saturated organic compounds. This carbon is partial positive and partial negative is Cl, because Cl is more electronegative as compared to carbon. So that's why this bond is polar covalent bond, and this carbon is electrophilic in nature. Electrophilic in nature. When this carbon is electrophilic in nature, nucleophile attacks at this carbon and another nucleophile is removed from this system. So this class of compound easily undergoes न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN रिएक्शन, जिसको फिर आप फर्दर जब आप उसका मैकेनिज्म इलेबोरेट करते हैं बेस्ड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स, तो आप SN1 और SN2 की जो है वो बात कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर ये जो है वो आपके पास CH3 CH2 Cl, तो अगर Cl जो है वो किसी ऐसी कार्बन के साथ अटैच है, या तो वो खुद अकेली हो या उसके साथ सिर्फ एक कार्बन अटैच्ड हो, तो आप इसे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं। अगर आपके पास इस तरह सिस्टम हो सेकेंडरी, और अगर आपके पास दिस इज टर्शियरी, सो दीज डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स या अल्कोहल्स या एमीन्स आई हैव डिस्कस्ड इन द नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें हम जो है वो असल में अल्काइल ग्रुप को जो है वो डिफाइन कर रहे होते हैं या उस कार्बन को जो है वो डिफाइन कर रहे होते हैं, इट इज प्राइमरी कार्बन और सेकेंडरी कार्बन और टर्शियरी कार्बन। सो दीज कंपाउंड्स दे अंडरगोस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और एक दूसरा रिएक्शन जो अभी हमने पहले भी डिस्कस किया इज एलिमिनेशन रिएक्शन। सो अल्काइल हैलाइड्स दे कैन गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। सो हैलोजेंस, अगर आपको पता है कि जी हेलाइड दिस कंपाउंड इट कंटेन्स एंड हैलोजन, कोई भी जो है वो उसमें हैलोजन है, तो आप ये बता सकते हैं कि ये किस तरह के
रिएक्शन जो है वो दे सकता है। जिस तरह आप अल्काइल हैलाइड जो है वो कह रहे होते हैं, इसी तरह अगर आप एरोमेटिक सिस्टम पे ये लगाएंगे देन इट इज एराइल हैलाइड्स। ये आपके पास एराइल जो है वो ग्रुप है इंस्टेड ऑफ अल्काइल्स। अब दिस इज sp2 कार्बन, ये आपके पास sp3 है या ये आपके पास sp3 है। तो यहां जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो डिफिकल्ट होगी एज कंपेयर टू दिस अल्काइल हैलाइड्स। इसीलिए जब आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं रिएक्टिविटी का बिटवीन अल्काइल हैलाइड्स एंड एराइल हैलाइड्स, तो आप कहते हैं अल्काइल हैलाइड्स दे आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज कंपेयर टू एराइल हैलाइड्स। कार्बोनाइल फंक्शन, C double bond O. So carbonyl functional group is present in aldehydes and ketones. For example, if C double bond O H is present, then this functional group is known as aldehyde. ये aldehydes होंगे। If both these groups they are, कोई भी मिथाइल है या कोई भी अल्काइल है, एराइल है, कोई भी ग्रुप है, then they are ketones. So it means aldehydes and ketones both they contain carbonyl functional group. When one of the hydrogen is present with this carbon, then they are aldehydes, and if both are alkyl or methyl, ethyl या aryl groups हैं, then they are ketones. Again यहाँ आप देख सकते हैं this oxygen is more electronegative as compared to carbon, partially negatively charged, partially positively charged. Here we have partial negative, partial positive. So carbonyl compounds they contain electrophilic carbon. ये जो carbon है, this carbon is electrophilic in nature. When this carbon is electrophilic in nature, एक और भी इसकी जो है वो प्रॉपर्टी है, this carbon it is sp2 hybridized. So it means कि ये unsaturated है। sp2 hybridized, जिस तरह आपने ईथीन या अल्कीन में जो है वो देखा था, they undergo addition reaction, और फिर ये कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कर सकता है। सो न्यूक्लियोफाइल अगर यहाँ अटैक करता है या यहाँ अटैक करता है, देन दिस न्यूक्लियोफाइल इज एड अप इन दिस कार्बन बिकॉज दिस कार्बन इज अनसैचुरेटेड। दैट्स वाई कार्बनल कंपाउंड्स इधर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दे अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये मैंने एक सिर्फ इस कार्बन पे जो अटैक होगा उसकी जो है बात की है। अगर आपके पास यहाँ अल्फा हाइड्रोजन एटम है, अनदर टाइप ऑफ रिएक्शन जिसको आप कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं, वो भी अगर आप इसे बेस से ट्रीट करेंगे देन दे कैन गिव एल्डोल टाइप कंडेंसेशन रिएक्शन। या जो है वो अगर किसी के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, जैसे एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड है, उसे आप बेस से ट्रीट करेंगे देन इट अंडरगोस कैनिज़ेरो रिएक्शन। एनीहाउ कार्बनल कंपाउंड they contain this C double bond O functional group and they may be aldehydes and ketones. The difference is when C double bond O H is present, class of compound is aldehydes, and when C double bond O both are alkyl or aryl, then they are ketones. If we have ether functional, when oxygen is linked with both R groups, may be alkyl or aryl or aryl. So they are ethers, dialkyl ether, alkyl aryl ether or diaryl ethers. So ethers are organic compounds which contain COC linkage. ओके ये आपके पास जो है लिंकेज होगी। दे आर इनर्ट टूवर्ड्स मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। इसीलिए जो है वो जब आप केमिकल रिएक्शन कर रहे होते हैं जहां आपको इनर्ट सॉल्वेंट चाहिए होता है, तो वहां आप ईथर को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको याद हो व्हेन वी परफॉर्म द रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, देन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इट इज़ प्रिपेयर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो वहाँ आप डाईथाइल ईथर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सो ईथर्स दे कंटेन ऑक्सीजन as a functionality and oxygen is attached with both the carbon atoms. यहाँ डिफरेंस ये है अल्कोहल और ईथर में कि अल्कोहल में आपके पास एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच होती है, ठीक है। एंड देन
कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप COOH. Class of compound which contain this functional group, they are RCOOH. They are carboxylic acid. Though these carboxylic acid, organic acid जो हैं, they are weak acid, but still they are stronger as compared to alcohols and phenols. मिसाल के तौर पे एथेनोइक एसिड CH3COH या प्रोपेनोइक एसिड, और इसी तरह आप नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में ये आप जो है वो देख सकते हैं. सो दिस हाइड्रोजन इट कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग एनी बेस. आप जिस तरह एसिड्स के केमिकल रिएक्शंस हैं, एसिड रिएक्ट विद बेस गिविंग अ सॉल्ट एंड वाटर, या वो कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व कर सकते हैं. और अ वेल नोन रिएक्शन इज अ स्टैटिफिकेशन और ए माइल्ड फॉर्मेशन. तो ये सारे रिएक्शन आप इन कार्बोक्सिलिक एसिड पे जो है वो कर सकते हैं. अगर आप इसका हाइड्रोक्सिल को रिमूव करके कोई और यहाँ फंक्शनल ग्रुप लेके आते हैं, देन यू कैन सिंथेसाइज डिफरेंट डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. सो दीज कार्बोक्सिलिक एसिड दे मे बी एलिफेटिक, जैसे मैंने यहाँ CH3 लिखा, या एरोमेटिक, कि इफ benzene ring is attached with this carboxylic acid, then it is benzoic acid. This is carboxylic acid functional group. Next, some derivatives of carboxylic acid. Suppose we have ester functional group, in which C double bond O R. So there is a difference between ethers and ester. ethers में आप जो है वो, ईथर में कार्बोनाइल ग्रुप नहीं होता. यू हैव ROR, ये आपके पास ईथर है. बट इन केस ऑफ एस्टर यू हैव RC डबल बॉन्ड O. ये उसी तरह का पार्ट है जिस तरह का आपने कार्बोक्सिलिक एसिड में जो है वो देखा. ठीक है, तो ये जो है वो आपके पास RC डबल बॉन्ड OR, दिस इज एस्टर. मिसाल के तौर पे आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 आप जो है ले लें. सो ये आपके पास जो है वो अल्कोहल पार्ट है जब हम इनको सिंथेसाइज करते हैं, और ये आपके पास जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट है. नेमिंग भी इसी तरह होती है. इट इज मिथाइल 2 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड, एथेनोइक एसिड, तो यहां आप लिखते हैं मिथाइल एथेनोएट. So these esters, they can be synthesized by reacting carboxylic acid with alcohols in the presence of acid catalyst. अगर आप जितने भी आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स upon hydrolysis they generate the carboxylic acid. So it means esters upon hydrolysis they generate carboxylic acid and alcohols. ये आप जो है वो याद रखें कि जो जिससे ये आपने सिंथेसाइज किया है. इसी तरह आप जो है वो एरोमेटिक एसिड के जो है वो बना सकते हैं. एस्टर C डबल बॉन्ड O, दिस इज इथाइल, और ये बेंजोइक एसिड का जो है एस्टर है इथाइल बेंजोएट. एस्टर्स आर कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स. अनदर वन एसाइल हेलाइड्स. जिस तरह आपने अभी हैलोजन्स को जो है डिस्कस किया, अल्काइल हेलाइड्स में ये एसाइल हेलाइड्स, इट मींस यू हैव C डबल बॉन्ड OX, एसाइल हेलाइड. फॉर एग्जांपल वी हैव RC डबल बॉन्ड OX. समटाइम्स बुक्स में आप जो है वो इसको एसिड हेलाइड्स भी कह देते हैं. इट मीन्स कि आपने कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH है उसको आपने रिप्लेस कर दिया X के साथ. X में भी ClF Br, ये जो है वो हैलोजेंस हैं. ठीक है, सो एसाइल हेलाइड्स. अगर आप इनकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, देन हाइड्रोलिसिस वी नो दैट
hydrolysis of all carboxylic acid derivatives, they generate the carboxylic acid. ठीक है, मिसाल के तौर पे आप R को लिख देते हैं CH3COCl, 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, देन इट इज एथेनॉयल क्लोराइड। या आपके पास C+O Cl, बेंजोइक एसिड से आपने ये जो है वो बनाया है, ठीक है, देन इट इज बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल, दिस इज नॉट अल्काइल हैलाइड, दिस इज एसाइल हैलाइड। अगर आप इसकी जगह ये आपके पास होगा, तो ये आपके पास जो है वो एसाइल हैलाइड नहीं है, अल्काइल हैलाइड है एक तरह का, जहां बेंजीन फिनाइल एक सब्स्टिट्यूटेड है। दिस इज बेंजाइल, दिस इज बेंजाइल, ये बेंजाइल ग्रुप है। ये आपके पास जो ग्रुप है, दिस ग्रुप इज नोन एज बेंजोइल। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बेंजोइल एंड बेंजाइल। बेंजोइल इज एसाइल, एसाइल ग्रुप है वो, और बेंजाइल अल्काइल ग्रुप है एक, ठीक है। सो दिस क्लास ऑफ कंपाउंड इज एसाइल हैलाइड या एसिड हैलाइड्स। दिस इज आल्सो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। अनदर वन जिसमें आप जो है वो ये देख सकते हैं, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड किसके एनहाइड्राइड? एसिड एनहाइड्राइड भी आप इसे जो है क्या कहते हैं, C+O So anhydride, they are, for example, we have R, C+O, ठीक है। सो एनहाइड्राइड जैसे नेम ही बता रहा है, ये अगर आप कहेंगे एसिड एनहाइड्राइड, तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी एसिड को आप डिहाइड्रेट कर देते हैं, उसमें से वाटर को जो है वो रिमूव कर देते हैं, देन द फंक्शनल ग्रुप जो आपके पास आता है इट इज एनहाइड्राइड। सो 2 moles ऑफ एसिड आर COOH, इसके जो 2 moles हैं आर COOH, इसमें से अगर आप वाटर निकाल दें तो जो फंक्शनल ग्रुप आपके पास है वो एनहाइड्राइड है। तो ये जो क्लास ऑफ कंपाउंड है, दे आर नोन एज एसिड एनहाइड्राइड्स। मिसाल के तौर पे आपके पास अगर आप एसिटिक एसिड इसके 2 moles लें और इनको वाटर जो है निकाल लें, देन यू हैव दिस कंपाउंड, इट इज एथेनोइक, 2 कार्बन का है, एथेनोइक एनहाइड्राइड, या हम इसको कॉमनली कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। These anhydride, they are also used for acylation of organic compounds। जिस तरह आपने यहां देखा कि ये अगर किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करेगा तो ये एसाइल ग्रुप वहां अटैच हो सकता है, बिकॉज दिस कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, और यहाँ गुड लिविंग ग्रुप जो है वो मौजूद है। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करके इस एक्स को जो है वो रिमूव कर सकता है। उसी तरह ये भी जो है वो मिसाल के तौर पे कोई न्यूक्लियोफाइल हो, NH2 हो या कोई भी, तो ये यहाँ अटैक करके इसको रिमूव कर देगा। सो इट मीन एनहाइड्राइड्स एंड एसाइल हैलाइड्स बोथ कैन बी यूज फॉर एसाइलेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिनमें जो है वो कोई इलेक्ट्रॉन रिच फंक्शनैलिटीज़ हो या कोई न्यूक्लियोफाइल हो, वहाँ ये यूज़ हो सकते हैं, एनहाइड्राइड्स भी और एसाइल हैलाइड्स भी। और दूसरा जो है वो जो सब में कॉमन है, अगर आप इनकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस वापस एसिटिक एसिड को जो है वो प्रोड्यूस कर देगी। सो एनहाइड्राइड्स अपॉन हाइड्रोलिसिस दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू carboxylic acid. Another one is amides, COON। अब इस N के साथ कोई भी आप ग्रुप्स भी लगा सकते हैं, हाइड्रोजन भी लगा सकते हैं, they are amides। For example, you have RCONH2। अगर जो है वो इस तरह का स्ट्रक्चर है तो आप इसे कहते हैं प्राइमरी
एमाइड्स, अगर आपके पास ये स्ट्रक्चर है सेकेंडरी, और अगर आपके पास देन इट इज टर्शरी amides. So amides, they are also known as carboxylic acid derivative because they can be synthesized by reacting carboxylic acid or acyl halides or anhydrides with amines. तो ये जो है वो एमाइड्स जो है वो जनरेट कर देंगे। अगर आप इनकी हाइड्रोलिसिस करें, यहाँ से आप बांड तोड़ते हैं तो वापस कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ जो है वो आप जा सकते हैं। नाइट्राइल्स दे आर आल्सो कंसिडर्ड एज कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, लेकिन आप इसको जो है वो CN सियानो ग्रुप, ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट अगर आप इसको देखें तो आप इसे कहते हैं सियानो ग्रुप। बट नाइट्राइल्स फॉर एग्जांपल वी हैव CH3CN, अमूमन आप इसे जो है एसिटो नाइट्राइल जो है लिखते हैं। सो एसिटोनाइट्राइल अपॉन हाइड्रोलिसिस, अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करें देन इट विल गिव्स अस एसिटिक एसिड। इंटरमीडिएट इसका जो है वो अमाइड होगा और वो फिर कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। सो दिस ऑल दोस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन दिस CN फंक्शनैलिटी दे आर नोन एज नाइट्राइल्स। जैसे आपके पास ठीक है, आप अल्काइल ग्रुप लगा दें या आप एराइल ग्रुप लगा दें, दिस क्लास ऑफ कंपाउंड दे आर नोन एज नाइट्राइल्स। और वी हैव amines. Amines, they contain amino functional group. Amino. So we have R NH2 alkyl amines. Phenols, carboxylic acids, these are examples of acidic functional groups. Amino or amines, this class of compound, they are known as basic compound, basic organic compounds. So it means amino functional group is basic in nature. किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर NH2 ग्रुप होगा देन इट हैज प्रॉपर्टी टू डोनेट इलेक्ट्रॉनिक पेयर, दे कैन एक्ट एज अ बेस और NH2, या आप जो है वो दिस इज अगर जो है वो आपके पास NH2 हो तो प्राइमरी अमीन्स हम इसे जो है वो कह देते हैं। अगर आपके पास RNHR हो तो आप इसे सेकेंडरी इमीन्स लिखते हैं। इफ यू हैव RNR then it is tertiary amines. Okay, alkyl amines जैसे आप CH3NH2 मिथाइलमीन, या आपके पास CH3 CH2 NH2 इथाइलमीन, या आपके पास CH3 CH2 NH CH2 CH3 डाई इथाइलमीन, या आपके पास एरोमेटिक अमीन। हम इसे फिनाइलमीन या अमाइनोबेंजीन या एनिलीन, आप इसकी जो है वो डिफरेंट नॉमेनक्लेचर कॉमन एंड आईयूपैक नेम से इसको जो है वो जानते होंगे। इट आल्सो कंटेन्स वन अमाइनो ग्रुप. So when it contains amino group, it means this amino group basic in nature. It means they are basic organic compounds and they have different basicity. आप जो है वो it depends upon the power to donate electronic pair. Nitro compounds. Nitro compound which contain nitro functional group. NO2. For example, we have R NO2 nitro alkanes, or we have aromatic nitro benzene. Though amines and nitro compounds both they contain nitrogen but they are very much different from each other. यहाँ आपके पास लोन पेयर अवेलेबल है जो कि H पॉजिटिव को दिया जा सकता है, जबकि नाइट्रो कंपाउंड्स में
ये इसका जो है वो स्ट्रक्चर है. So lone pair at this nitrogen is not available, so that's why this nitrogen it is not basic in nature. और अगर आप इस ग्रुप को देखेंगे, दिस ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और अगर आप इस ग्रुप को देखेंगे, दिस ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग. बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर एट दिस नाइट्रोजन, ये उस रिंग को जो है वो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉनिक पेयर. एंड दिस नाइट्रोजन, बिकॉज दिस नाइट्रोजन इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अटैच विद ऑक्सीजन, नेवर कंटेन्स एनी लोन पेयर. दैट्स व्हाई दिस नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग. जब आप जो है वो केमिकल रिएक्टिविटी डिस्कस कर रहे होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की या बेंजीन की टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो हम ये कहते हैं दिस अमाइनो ग्रुप इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन towards electrophilic substitution reaction. But this nitro group, whenever this nitro group is present at benzene ring, it decreases the reactivity of this benzene ring towards electrophilic substitution reaction. जिस तरह आपने एस्टर्स को अभी जो है वो डिफाइन किया, अगर जो है वो कोई सल्फर उसमें जो है वो अटैच्ड हो, then we have thioesters. For example, if we have R, C double bond O, अगर ये OR हो तो फिर हम इसे जो है वो एस्टर कहते थे. अगर यहाँ O की जगह आप S ले लेंगे, then they are known as thioester. इसमें भी जो है वो उसी तरह होगा कि आप जो है वो इसकी अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो अल्कोहल की बजाय RSH बनेगा, और इस क्लास ऑफ कंपाउंड्स को आप कहते हैं थाइओल्स. ठीक है, ये जो है वो थायो अल्कोहल है. जो है वो आप इसे जो है वो ROH अगर हो तो अल्कोहल, और अगर RSH हो तो ये आपके पास थाइओल्स जो है वो होंगे. सो दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन सल्फर कंपाउंड. कुछ और ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें जो है वो या ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स विच कंटेन सल्फर, दे आर आपके पास जो है वो SO3OH, they are known as sulfonic acid. So it mean अगर आप यहाँ R लगा दें, बेंजीन लगा दें, अल्काइल लगा दें, these are the organic compounds which contain sulfonic acid functional group. जिस तरह आपने कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप को जहाँ डिफाइन किया, इसी तरह आपके पास ये सल्फोनिक एसिड है. और अगर इसको आप OH को आप रिमूव कर दें किसी Cl के साथ, then it is सल्फोनाइल क्लोराइड. सल्फोनाइल क्लोराइड. ओके, और अगर जो है वो आप इस OH को NH2 से जो है वो रिप्लेस कर दें, देन दिस इज नोन एज सल्फोनामाइड. सो दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन सल्फर एंड दे आर सल्फोनिक एसिड, सल्फोनाइल क्लोराइड एंड सल्फोनामाइड्स. और इसी तरह जो है वो जैसे आपने कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके डेरिवेटिव्स के रिएक्शन जो है पढ़े, अगर आप इसको जो है वो हाइड्रोलाइज करेंगे, आप Cl को जो है वो इससे रिप्लेस करेंगे, आपके पास सल्फोनिक एसिड आएगा. आप इनको हाइड्रोलाइज कर देंगे, अगेन यू हैव योर प्रोडक्ट सल्फोनिक एसिड. सो दे आर आल्सो कंसिडर्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड दे हैव इंपॉर्टेंस. जैसे ये सल्फोनामाइड्स हैं, सल्फोनामाइड्स दे आर वेल नोन एंटीबैक्टीरियल्स. अगर आप इससे जो है वो देखते हैं, देन दिस इज सल्फोनिल एमाइड. Sulfonamide is a well-known antibacterial antibiotic. So this is all about the functional groups in organic compounds. जैसा मैंने पहले कहा, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, देन इट इज़ मस्ट टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप. आप फंक्शनल ग्रुप्स के नेम, उनके स्ट्रक्चर और क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर आप जो है वो अंडरस्टैंड कर लें, देन यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स एंड देयर स्ट्रक्चर एंड क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स and some description about the chemical reactivity of these functional group. In my upcoming lecture, I will discuss the alkanes and the different methods which are used for the preparation of alkanes. Thank you very much.